توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا صحت جرم سے انکار۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران اسپیشل کورٹ سینٹرل 1 نے فرد جرم عائد کی۔ کیس نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کیا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ ریفرنس کے مطابق سعودی ولی عہد کے دیے گئے بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت اس کی مالیت سے کم لگائی گئی۔ بانی پی ٹی آئی نے وزارت عظمیٰ کے دوران 108 میں سے 58 تحائف اپنے پاس رکھے۔ سیٹ کی کم قیمت لگوا کر قومی خزانے کو 3 کروڑ 28 لاکھ روپے کے زائد کا نقصان پہنچایا گیا۔ تھانہ شادمان جلاؤ گھیراؤ کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہوں کو طلب کر لیا۔ سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ اے ٹی سی کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کی۔ عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت دیگر مقدمات کی کارروائی 23 دسمبر تک ملتوی۔ ہماری شکایت صرف ایوان صدر اور صدر مملکت سے ہے، علماء سے کوئی اختلاف نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈی آئی خان میں میڈیا سے گفتگو، کہا دینی مدارس کی رجسٹریشن کے لیے بل حکومت نے تیار کیا تھا۔ حکومت کے منظور کردہ بل پر صدر نے اعتراض کیوں کیا؟ کسی بھی بل پر صدر آئینی مدت میں دستخط نہ کریں تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا، معاملے کو غیر ضروری طور پر الجھا دیا گیا۔ ہم نے طے کر لیا احتجاج کریں گے، اسلام آباد جانا پڑا تو جائیں گے۔ حکومت نے بلاول بھٹو سے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کی درخواست کر دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی مشاورت کے بعد جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو جوڈیشل کمیشن میں یکساں نمائندگی نہ ملنے پر ناراض تھے، احتجاجاً اپنا نام واپس لیا تھا۔ جوڈیشل کمیشن میں 5 ارکان پارلیمنٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ حکومت کے 3 اور اپوزیشن کے 2 ارکان شامل ہیں۔ چین نے بڑی تیزی سے ترقی کی ہے، چین کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا چین اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں، چین کے ساتھ مل کر مختلف شعبوں میں کام کریں گے۔ چین کے اشتراک سے پنجاب میں متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے وفاقی حکومت سے 9 اور 10 مئی کی ایف آئی آرز اور دیگر تفصیلات طلب کر لی۔ آئینی بینچ نے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے رولز بھی مانگ لیے۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، جو شخص آرمڈ فورسز میں نہیں وہ اس کے ڈسپلن کے نیچے کیسے آ سکتا ہے؟ کیا غیر متعلقہ شخص کو ڈسپلن کے نیچے لانا آرٹیکل 8 کی خلاف ورزی نہیں ہوگی؟ اس طرح تو کوئی اکسانے کا سوچے اس پر بھی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ ملک میں سب سے بڑا عہدہ صدر پاکستان کا ہے، ایوان صدر پر حملہ ہو تو ٹرائل اے ٹی سی میں ہوتا ہے۔ جو شخص آرمی ایکٹ کا سبجیکٹ نہیں، اس کو بنیادی حقوق سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے خلاف درخواستیں خارج کر دی۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس ختم ہو چکا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا قانون آ جائے تو آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے، آئین صدر پاکستان کو آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر بولے آرڈیننس کے تحت بنی کمیٹی ختم ہو گئی، کمیٹی کے فیصلوں کو پاس اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز کا تحفظ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور دیگر نے آرڈیننس کو چیلنج کیا تھا۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات باضابطہ بات چیت کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے اسد قیصر کی ملاقات، ملکی مفاد میں اتفاق رائے پیدا کرنے پر تبادلہ خیال۔ ایاز صادق نے کہا آپ اپنی جماعت سے سخت موقف رکھنے والوں کو سمجھائیں، میں اپنی جماعت کے لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ پی ٹی آئی قیادت نے بانی سے ملاقات کی درخواست کر دی۔ اسد قیصر نے کہا ملاقات میں مزید مشاورت کریں گے، سول نافرمانی کی تحریک کا فیصلہ اب بھی برقرار ہے۔ شوکت یوسف زئی کا کہنا ہے حکومت نے مذاکرات نہ کیے تو 2 روز بعد سول نافرمانی کا آغاز ہو جائے گا۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں سول نافرمانی کی تلوار لٹکا کر مذاکرات نہیں ہو سکتے۔
हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से आज भी मुलाकात है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कोशिश है तमाम अपोजिशन जमातों को साथ मिलाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा हमेशा से मुज़ाकरात का हामी हूं, अगर कोई पेशरफ्त हुई है तो मुस्बत होगी। अच्छी बात है फैज हमीद पर सियासत में हिस्सा लेने पर मुकदमा चल रहा है। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल कहती हैं एडवाइजरी कमेटी में मुज़ाकरात पर हुकूमत का मुस्बत रिस्पॉन्स था। कमेटी जो भी मुज़ाकरात करेगी सबके सामने करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर कई सवालात उठा दिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डी सीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, क्या इलेक्शन कमीशन ऐसा ट्रायल करने का हक रखता है? ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आ गई? इलेक्शन कमीशन ने तो बुलडोजर लगाया हुआ है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, हकायक जांचने के लिए क्या इंक्वायरी की गई? क्या इलेक्शन कमीशन तमाम अदालतों से बालातर है? आपको किसी चीज की परवाह नहीं? क्या आप किसी को नहीं मानते? इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर आदिल बाज़ई को डी सीट किया था। सिटी काउंसिल इजलास में ऑपोजिशन का एहतजाज। डिप्टी मेयर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ऑपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल सैफुद्दीन का कहना है पीपल्स पार्टी कराची वालों के साथ तासुब का रवैया रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची एक्सपो सेंटर में आलमी कुतुब मेले का इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची को नजर लगाने वाले लोग खुद खत्म हो जाएंगे। ये कराची है जहां दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस होती है। जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ मजबूत वनडे स्क्वाड का ऐलान। टिम्बा बुआमा की वनडे स्क्वाड में वापसी, टीम की क़यादत करेंगे। T20 सीरीज में आराम के बाद स्टार खिलाड़ियों को वनडे में शामिल किया गया। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच 17 दिसंबर को खेला जाएगा। साबिक सदर आरिफ अलवी को 19 दिसंबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। अदालत ने मुकदमात से मुतालिक IG सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल और FIA से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि साबिक सदर हैं, बदनीयती पर मबनी मुकदमात में गिरफ्तार न किया जाए। बदनीयती वाले मुकदमा दर्ज किए तो अदालत उसे खत्म कर देगी। साबिक सदर के ओहदे का ख्याल रखें। डी चौक जाने का फैसला आपका था या अली अमीन गंडापुर का? क्या बानी PTI की इजाजत से सियासी फैसले किए थे? आपके और अलीमा खानम के दरमियान इख्तिलाफात की खबरों में कितनी सदाकत है? बुशरा बीबी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद के मौके पर सहाफियों के सवालात। बुशरा बीबी ने किसी सवाल का जवाब न दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने तंज के तीर चला दिए। अज़मा बुखारी ने कहा 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़कर आई। आज कौम को बताएं डी चौक से दौड़ क्यों लगाई थी? कौमी असम्बली में वुज़रा की गैर हाजिरी पर डिप्टी स्पीकर बरहम। एहतजाजन कल सुबह 11 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। कहा ऐसे हालात में ऐवान कैसे चलेगा? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले वुज़रा की अदम शिरकत इंतहाई अफसोसनाक है। वुज़रा ऐवान को बेतौकीर कर रही है। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने तजवीज दी वुज़रा के आने तक ऐवान की कार्रवाई शुरू न की जाए। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा हुकूमत का रवैया पहले दिन से गैर संजीदा है। ये काम करने के मूड में ही नहीं। इतने ज्यादा वुज़रा हैं लेकिन पार्लियामेंट नहीं आते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नोटिस लें, हम पार्लियामेंट की बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी और तिजारती ताउन को फरोग देने की जरूरत है। दोनों मुल्कों के अवाम बिलखुसूस सरमाकारों के दरमियान रवाबत बढ़ाना होंगे। सदर आसिफ जरदारी की बिलावल हाउस कराची में चीनी कारोबारी वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। चीनी वफ्द ने मेडिकल सिटी के कयाम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। सदर ने कहा पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 1,13,000 की सतह भी उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2,747 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,13,557 पॉइंट्स पर पहुंच गया। FIA ने दुबई में पाकिस्तानी शहरियों की जायदादों से मुतालिक 43 केसेस बंद कर दिए। विफाकी तहकीकाती इदारा 50 से जायद शहरियों के खिलाफ अहम शवाहिद इकट्ठे न कर सका। 6 साल की तहकीकात के बाद केसेस बंद कर दिए गए। जराये का कहना है इन 50 से जायद शहरियों का ताल्लुक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से है। 2018 में FIA को तहकीकात का हुक्म दिया गया था। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम, IG इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। JIT ने सिबगतुल्लाह वर्क, मोहम्मद अरशद, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, कोमल आफरीदी, अरूसा नदीम शाह और अली मलिक को तलब कर लिया। चाहते हैं चीनी और पाकिस्तानी बिजनेसमैन मिलकर काम करें, मुश्तरका तौर पर कारोबार को आगे बढ़ाएं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का कराची में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा बैरून मुल्क से आने वाले कारोबारी लोगों को सिंध हुकूमत मुकम्मल सिक्योरिटी देगी, सरमायाकारी के लिए हर तरह की सहूलतें दी जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई, गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -13 डिग्री रिकॉर्ड, स्कर्दू -7, कालाम कल्लात -6, गिलगित दस्तूर और क्वेटा में -5, इस्लामाबाद -1 तक गिर गया। पेशावर में 3, लाहौर मुल्तान 7, कराची में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साबिका दौर में कैदियों पर तशद्दुद या कत्ल करने में मुलव्वस हर शख्स को सख्त सजा दी जाएगी। शाम में बशारुल असद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली हयात अल तहरीर के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी का कहना है बैरून मुल्क मौजूद अफराद की हवालगी के लिए हुकूमतों से राबता करेंगे। शाम के 70% रकबे पर जंगजुओं और 20% पर सिरीनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल खित्ते के लिए खतरा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल इंतहा पसंदों को फरोग दे सकती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच का कहना है पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम, इसराइली इनखला पर जनरल असम्बली करारदाद का खैर मकदम करता है। भारत कश्मीरियों की जायदादों को जब्त करने की कार्रवाइयां बंद करे। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस का कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मरहूम सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा, कुतुब और दस्तावेजात कब्जे में ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय पुलिस ने हयतपुरा मोमिनाबाद में तहरीक हुर्रियत जम्मू कश्मीर के दफ्तर पर भी छापा मारा, दफ्तर में मौजूद अहम दस्तावेजात जब्त कर ली। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम के मामलात से दूर रहने का फैसला, कहा शाम को अपना मसला खुद हल करना चाहिए, हमारी हुकूमत में तरजीहात मुख्तलिफ होंगी, रूस और यूक्रेन के मसले को हल करना अव्वलीन तरजीह है। ट्रंप ने चीनी सदर शी जिनपिंग को अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में मदऊ कर लिया। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाएंगे। और चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स ने स्टालियंस को 3 रन से हरा दिया। 172 रन के ताक़ुब में स्टालियंस की टीम 167 रन बना सकी। दूसरे मैच में लायंस का डॉल्फिन से मुकाबला, तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।